what is acting for you? Yeah. Acting for me, which you have asked the first question, is basically a very soulful and beautiful journey of understanding human emotions in the language of the people who would see it. तो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस और कैसा लगा किंग खान के साथ काम करके? हाउ I feel proud. Simply, I feel very proud because मैं उनके सामने मेरी शख्सियत कुछ खास नहीं, वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और ऊपर वाला उनको उससे ज़्यादा आता करे. इफ ही वांट्स टू बी एन एक्टर, व्हाट मतलब सोसाइटल प्रेशर को छोड़ के वो अपने आप से क्या बात करे, अपने आप से क्या बोले, अपने आप को उस जगह रख के क्या देखे कि एक्चुअल में क्या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर That पाऊंगा. the onus of proving yourself as an actor, or the burden of proof, the responsibility basically in certain easy terms, is upon you as an actor. It's not upon the society. Who is the one person you think that he has always inspired you? Whenever you think of Bollywood, you think of that person. So Without any doubt, without any second thoughts, with folded hands, I would take Shasan's name. Hi and welcome to the another episode of the Founder's Voice where we believe that every founder has a story to tell. और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो ना सिर्फ एक एक्टर हैं, ना सिर्फ एक राइटर हैं, बल्कि उसके साथ एक मेंटोर भी हैं और साथ ही साथ अब बहुत जल्दी एक कास्टिंग डायरेक्टर भी बनने वाले हैं. मैं बात कर रहा हूँ शाहजहानपुर प्रोसेनियम्स LLB के फाउंडर और बहुत ही ज़बरदस्त राइटर, एक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर होने वाले मयंक मिश्रा जी का. जी. मयंक मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्ते. द फाउंडर्स वॉइस में. एंड सबसे पहला जो क्वेश्चन है और मैं आपसे सीधा सीधा यही पूछना चाहूँगा दैट व्हाट इज एक्टिंग फॉर यू? सबसे पहले भाई थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एंटायर इज्जत एंड एहतराम. आप मुझे मनिल भी बुला सकते हैं. मनिल. Yeah. Acting for me, which you have asked the first question, is basically a very soulful and beautiful journey of understanding human emotions in the language of the people who would see it. तो एक्टर मेरे लिए एक इंटरप्रेटर है जो एक स्क्रिप्ट राइटर की लिखी गई बात को ऑडियंस की ज़बान में ट्रांसलेट करता है, इंटरप्रेट करता है, तर्जुमा करता है उसका. और इसी के साथ इस पूरे प्रोसेस की जो जर्नी है वो बहुत खूबसूरत हो जाती है. वो इसलिए क्लेंस्ड हो जाती है और प्योरीफाई करती है आपके क्राफ्ट को, आपके अपने जो ह्यूमन सेल्फ है उसको, सोल को और स्ट्रेंथन करती है. क्योंकि एक्टिंग per se or even the classes of acting, training for acting would make you, always make you a better human being. So it does not really matter whether you want to become an actor after doing certain sessions of acting training. Eventually it would be shown in your real self. You would be a better human being if when you take acting classes or acting training sessions. So the entire process of becoming an actor is, I would say, largely a very predominantly spiritual journey where you get to know about yourself, you get to know about your emotions and about your associations with other people as well. So therefore it makes you a better human being. सो फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड की बात करते हैं तो बचपन से ही आप एक्टर बनना चाहते थे या इस फील्ड में आना चाहते थे या यू हैड कंप्लीटली डिफरेंट ड्रीम? So with the wildest stretch of my historical evaluation, which is ranging till my childhood, I don't think that I ever had a very logged choice of becoming an actor. I never had any, very straight-jacketed approach that I want to become an actor and all those things. So becoming an actor was more of an outcome of situation. मैं, अब मुझे पता नहीं है कितने लोग जानते हैं, सैट फॉर सिविल्स ट्वाइस यूपीएससी के लिए. ओह दैट्स ग्रेट. और जाहिर बात है नहीं हुआ इसीलिए यहाँ बैठा हूँ. उसके अलावा आई सैट फॉर मैनी मेजर एग्जाम्स. ओके. जी. एंड बियॉन्ड दैट I did not sit, I don't think I sat for any other examinations after 4-5 very, the kind of examinations which we usually have in a country which have a lot of say and a lot of credibility. उसके अलावा मैं किसी में बैठा नहीं. तो कहीं पे मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ, कहीं पे इंटरव्यू तक पहुंचा,
कहीं भी कुछ ऐसा हुआ कि कुछ नंबर से रह गया कोई, उसके बाद मैंने कभी कोई एग्ज़ाम देने की कोशिश नहीं की. एंड देयर फोर one thing which I was partly and very deeply also was a part of Delhi University students, the political circle of Delhi University students political circle, and I was also the central counselor of law fac of Delhi University at a point of time. I was the central counselor. मैं केंद्रीय पार्षद था, लॉ फैकल्टी को रिप्रेजेंट Okay. करता था दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन में, डूसू का हिस्सा था मैं. तो एक तो वो बात, लेकिन कुछ चीज़ें के चलते कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ज़िंदगी में और ज़्यादा बचा नहीं कि आप कह सकते हो कि साहब ये ट्राई करूँगा. और मेरी हमेशा एक नियति रही है, आई हैव ऑलवेज बिन अ मैन ऑफ सर्टन थिंग्स, very small things. I always had my priority list has always been very small. तो मैं भागता नहीं हूँ. कोई चीज़ नहीं मिली, एक्सेप्ट किया. That gestation period of accepting it would definitely be there. But beyond that, I never expected anything out of it. I never substitute anything for anything. तो कुछ नहीं मिला तो नहीं मिला, और वो खलिश, वो खालीपन मैंने ज़िंदगी में हमेशा अपने साथ रहने दिया, क्योंकि कोई किसी चीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकता. nobody can optionalize any other thing in a life. So if I sat for some examination, if I tried my luck, if I tried my, let's say, my attitude of being a laborious person or my labor into some field, and if I could not crack it, I did not try for anything else. तो ये सब होता रहा, तो मेरे पास, like, I narrowed down the list of my choices. So this was something at a point of time when I was sitting all by myself, and I spoke to my parents also. And then I realized that yes, this is something which I should get into. And in fact, while doing while studying for like when I was basically studying my studies in law fac in CLC, I had already done my first film. Okay. और वो भी सिर्फ इसीलिए हो गई क्योंकि कुछ दोस्त थे, जैसे अभिषेक बैनर्जी और अनमोल आहूजा, जो आज बहुत अच्छा नाम है, कास्टिंग बे का नाम है. उन्होंने कहा कि तुमने कॉलेज भर डिबेट्स किए हैं, तुम ये कर दो. मैंने कर दिया. तब तक नहीं पता था कि इस इंडस्ट्री में जाना है, लेकिन अच्छा लगा. राजकुमार गुप्ता सर जो हमारे पहले फिल्म के डायरेक्टर, मेरी पहली फिल्म के थे, गौतम कृष्ण चंदानी सर जो कास्टिंग कर रहे थे, इन लोगों से मिलकर लगा कि हाँ यार, अच्छी फील्ड है और इसमें आगे जाया जा सकता है. तो ये मोर ऑफ अ हिट एंड ट्रायल वाला एक चीज़ रहा. नेवर हैड प्लान्ड फॉर इट, कि कर लिया, अच्छा लगा तो टिके रहो. और उसका एक सबसे बड़ा कारण यह था कि तुम्हारे पास शायद करने को कुछ है नहीं. तो ये चीज़ रही. तो और उसमें ऊपर वाले की दुआ रही, आप लोगों का साथ रहा, कुछ बहुत अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, उनका सहयोग रहा. तो इसमें हम लोग जो हैं वो थोड़ा सा कंटिन्यू करते चले गए. फिर 1 दिन से 2 दिन हुए, 2 दिन से 6 महीने हुए, 6 महीने से साल हुआ, साल से एक ज़माना हो गया. ये चीज़. तो ये जर्नी ऐसा तो नहीं रहा होगा कि हमेशा से स्ट्रेट लाइन रही हो. हाँ, डेफिनेटली ये टॉप से अभी बिल्कुल there were हमेशा. tops and there were lows as well. डेफिनेटली. So everyone talks about the tops. कभी बिल्कुल ही लो फील हुआ है इन सिचुएशंस में जब आप एक्टिंग कर रहे थे? बिकॉज बहुत सारे एस्पायरिंग एक्टर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, जिनको लगता है कि यार, जिनकी हिम्मत एक बात पे टूट जाती है, जिनको लगता है कि यार अब मेरे को छोड़ देना चाहिए और ये जर्नी अब मुझे नहीं लगता और आगे बढ़ानी. जी. तो कभी ऐसा लो फील हुआ आपको कि यार अब मेरे को छोड़ देना चाहिए एंड आई शुड गो बैक टू व्हाट आई वाज डूइंग और आई कैन डू समथिंग एल्स? देखिए, like any other natural person, I certainly have had the share of grief in my life as well in terms of my profession. As far as my profession is concerned, professional दिक्कतें किसी की जैसे ज़िंदगी में रहती वैसे मेरी रही. However, on the contrary, my attitude towards problem has always been a little different. जब भी मुझे ज़िंदगी में कोई परेशानी हुई, मैं हमेशा अपना I have always overgrown my problems. I have always become more grown than my problems. I have always outlived my problems. तो मैं हमेशा अपनी परेशानियों से बड़ा हो गया. So definitely I have had my share of my thing of challenges, problems, aberrations in terms of in my profession and everything, like any other person who was an actor, who has been an actor in process. But I never let them impact me so much that I could actually document them and probably could let anybody know about it, that yes, this was the thing which changed my life forever. No, ऐसा कभी नहीं हुआ. लेकिन yes, challenges रहे, और वो challenges मैं आपको फंडामेंटली बता देता हूँ. पैंडमिक कोविड के टाइम पे
हम सब आर्टिस्ट्स को बहुत हिट हुए थे हम, मैं भी हिट हुआ था, काम की कमी थी, और जो कुछ ऑफर भी हो रहा था वो इट वाज नॉट, इट वाजंट एबल टू गिव यू सम काइंड ऑफ अ क्रिएटिव सिचुएशन, वो सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहा था। एक ये चीज़ थी। दूसरा, इंडस्ट्री का एक चलन है साहब, इंडस्ट्री में आपको एक्सपेरिमेंट करने की बहुत आज़ादी नहीं, जो प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं वो नहीं दे पाते। तो उसके लिए क्या हुआ कि अगर आपने एक चीज़ से एक इमेजरी अपनी बनाई एज एन एक्टर, और अगर आप उसको एक पॉइंट पे जाके तोड़ना चाहते हैं, यू वांट टू एक्सपेरिमेंट समथिंग न्यू, वांट टू डू समथिंग न्यू एज एन एक्टर बिकॉज यू हैव दैट क्वेस्ट ऑफ बीइंग अ फुलफिल्ड एक्टर और अ कंप्लीट एक्टर, तो मुझे लगा कि वो मेरे लिए, आई मीन आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल एक्चुअली वुड अग्री टू दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑफ माइंड, हाउएवर आई फाउंड इट वेरी चैलेंजिंग दैट व्हाई आरंट पीपल अप्रोचिंग मी विद डिफरेंट कैरेक्टर्स, समथिंग न्यू। काम आ रहा था लेकिन काम ऑलमोस्ट एक जैसा ही आ रहा था। तो ये मुझे दो तीन चीज़ें लगी। फिर मुझे मतलब ऐसा, लाइक आई टोल्ड यू दैट आई एम नॉट अ वेरी एम्बिशियस पर्सन, आई एम नॉट अ पर्सन हु वुड लुक एट समथिंग, I'm not a very ambitious person. I'm not a person who would demand or expect something like, you know, something which is beyond my natural ability or capability from nature. So whatever I've gotten, I'm pretty satisfied with that. And I'm in fact thankful to Mother Nature. श्री राम को, ऊपर वाले को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे जो भी मिला मेरे पेरेंट्स के आशीर्वाद से, मेरी जो स्पाउस है नेहा, उनके प्यार से, मेरे भाई हैं, जो सिबलिंग्स हैं, उन सब के जो बहनें वगैरह सब, उन सब के घर में बच्चे बच्चियां हैं, उन सब का जो लक है और फॉर्च्यून है, वो सब क्यूमुलेटिवली एक साथ मेरे लिए काम किया, और जो भी आज कुछ है उसमें मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। सो व्हेन यू टर्न्ड योरसेल्फ इनटू द फील्ड ऑफ एक्टिंग, जब आप एक्टिंग में घुसे हो तो हमेशा से पेरेंट्स एंड पीपल अराउंड यू वर सपोर्टिव अबाउट इट? Yes, yes. Yeah, so like, you know, this is very surprising also, very ironical also. I come from very small town of Uttar Pradesh. I come from very, like, you know, a kind of a household which probably would not have uh, a kind of a value system which would take your passion for acting very inherently or very easily. But having this kind of a family environment set up, which otherwise I had this understanding कि अगर मैं ये बात करूँगा तो शायद, you know, it would not get approved. My parents would not be able to understand the kind of passion, or I had an interest in going into this field. But to my utter surprise, I never found that challenging in my family. In fact, my parents were more passionate. My parents have been more accommodating in seeing me in front of the camera. They always encourage me to go for podcasts like these and for working tirelessly for any. But like they praise me whenever I work towards a script, when I work upon a certain you know, on a particular project, when I work on a script, when I work towards a project, they always encourage me. So this was something which was very surprising from me coming, I mean, considering the fact that I come from a certain type of background which is very conventional in our Indian households. I got a lot of support and a great promise from my parents. And similarly, um, mine is an arranged marriage. My Okay. spouse Neha, surprisingly, she also was very supportive, and she got to know just before marriage, when we met for the first time with each other. My in-laws were there, my papa ji and mummy ji, papa ji were there, mummy ji तो नहीं है, God bless her soul. जब मेरे पेरेंट्स और नेहा के तरफ से जो लोग आए थे, बात हुई थी और ये बात उठी कि मनिल क्या करना चाहते हैं, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज वर्किंग इन सम लीगल कॉर्पोरेशन immediately after passing out from my law fac, and I was placed from college only. जो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि उनको मेरे अंदर क्या दिखा कि उन्होंने मुझे नौकरी दे दी, बट ठीक है. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन दिस एंटायर थिंग वाज डिस्कस्ड दैट हाउ डू यू सी योरसेल्फ एंड व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फॉर द फ्यूचर, सो इट वाज, आई वाज वेरी क्लियर अबाउट द फैक्ट दैट yes, I am not seeking future. I am not. I'm basically seeking a lot of future. My larger part of life would go into this industry, and they never had any problem. Neha's family members, they never had any problem. So I think I was very fortunate that I got my parents who were very supportive. Then also a new person who entered into my life, who's having that kind of a promise of being with you forever, my wife. She was also equally supportive, and likewise her family members, parents and everybody. तो मैं इस मामले में थोड़ा अपने आप को
किस्मत का धनी और खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे पेरेंट्स और इन लॉज और मेरे सिबलिंग्स और स्पाउसेस वगैरह जितने हम लोग साथ में ऐसे मिले जिन्होंने मेरे इस डिसीजन को सपोर्ट किया। दैट्स वेरी ग्रेट। और मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे हमारी बात हुई थी और मेरे को जब पता चला दैट यू हैव वर्कड विद वन ऑफ द बिगेस्ट stars in the Bollywood, and that is King Khan. Obviously, everyone knows. How was your experience with him? मतलब कैसा रहा वो experience और कैसा लगा King Khan के साथ काम करके? How was people around you reacted that you were with him and working with him? देखिए ये मुझसे सवाल शाह सर के बारे में, शाह सर के साथ मैंने काम किया, ये मुझसे हमेशा पूछा जाता है एंड आई एवरी टाइम इट इज़ आस्क्ड फ्रॉम मी आई फील अ लॉट ऑफ आई फील प्राउड, सिंपली आई फील वेरी प्राउड बिकॉज मैं उनके सामने मेरी शख्सियत कुछ खास नहीं, वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और ऊपर वाला उनको उससे ज़्यादा आता करे। मुझे लगता है कि उनकी शख्सियत खुद में बहुत खूबसूरत है। ये बात मैंने पिछले पॉडकास्ट पे भी बोली थी, आप ही की तरह कोई भाई है उन्होंने बुलाया था, मैंने बोला था कि अगर वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह ना होते, किंग खान ना होते, और वो सिर्फ एक स्कूल में टीचर भी होते या कुछ और वोकेशन में होते, प्रोफेशन में होते, तो भी वो किंग खान होते। वो आदमी अपना दिल लेके आपके सामने आता है, वो दिल देता है आपको, ओपन हार्टेड है, क्लीन है, क्लियर है, प्योर है, ट्रांसपेरेंट है। तो जो शख्स इतनी खूबसूरती और इतनी सफाई से आपके सामने आया है, इतनी सादगी से आपके सामने आया है, तो किस मुंह से, किन हालात में, किस सूरत हाल में और किस तरह आप उसे मना करेंगे। तो ही इज़ अ वेरी अफेक्शनेट पर्सन, वेरी लवेबल पर्सन हु बिलीव्स इन द बार्टर ऑफ लव। Simply just putting his entire machismo in one simple sentence, he is basically a merchant of love. वो प्यार के सौदागर हैं और बहुत खूबसूरत आदमी हैं। हमने फिल्मिस्तान में शूट किया था मुंबई में, और कुछ ही घंटों की शूटिंग में हम बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। कुछ ऐसा कभी नहीं लगा कि सर इज़ एट सच अ हाइट एंड आई एम जस्ट एन एक्टर इन प्रोसेस। कभी उन्होंने मुझे कैसे ऐसा फील नहीं कराने दिया। और दूसरी सबसे अच्छी बात है कि उनके अंदर एक बहुत अच्छी क्यूरोसिटी मैंने देखी चीज़ों को जानने की, मेरे बारे में जानने की, मेरी ज़िंदगी के बारे में जानने की, विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, विच इज़ नॉट अ लॉजिकल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ सेलिब्रिटी लाइक हिमसेल्फ, बट ही स्टिल वॉज वेरी क्यूरियस एंड वॉज वेरी मच इन टू मी। तो वो शख्स आपके अंदर इतना है कि ही इज़ बेसिकली इन अस, इज़ अस, वो हम ही हैं, वो हमारे अंदर भी हैं। तो उससे क्या हुआ कि आपका जो उनके साथ एसोसिएशन है, एक रिलेशनशिप पूरी ज़िंदगी के लिए बन गया। इट वॉज अ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप विच वी एस्टैब्लिश्ड, और मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ का, एक गर्व तो है ही। आई फील अ लॉट ऑफ प्राइड इन दिस पर्टिकुलर थिंग दैट आई कुड वर्क विद सच अ बिग सुपरस्टार ऑफ आवर एज एंड टाइम, but I'm also very content and happy that I could meet a great person in my lifetime. So he's a great man, nevertheless, nonetheless, beyond any situation, devoid of any circumstances, he's always been continuously, perpetually great. That's great to hear. So इसके साथ ही सवाल पूछते हैं कि जैसे आपने बताया कि आपने बॉलीवुड के काफ़ी सारे स्टार्स के साथ काम किया है, तो एक बॉलीवुड का क्रेज़ इंडिया में मार्वलस है, बहुत ज़्यादा है। और हर यंगस्टर हमेशा कहीं ना कहीं उसको देख के एस्पायर भी होता है, उसे लगता है कि उसे एक्टर बनना है और उसे लगता है कि वो एक्टर बन सकता है, बट कहीं ना कहीं सोसाइटी जो है उसके सपनों को मारना शुरू कर देती है जी। कहीं ना कहीं कोई दोस्त मिल जाएगा जो बोलना स्टार्ट कर देगा, अरे यार तू कहाँ से एक्टर बनेगा, या कोई पेरेंट कुछ बोल देगा या कोई कुछ बोल देगा, और वो चीज़ें उसमें दब के रह जाती। अगर किसी को एक्टर बनना है या वो एस्पायर होता है किसी चीज़ को देख के, तो आपको क्या लगता है कि सबसे पहला स्टेप उसे क्या सोचना चाहिए कहीं पे भी कि इफ़ ही वांट्स टू बी एन एक्टर, व्हाट मतलब सोसाइटल प्रेशर को छोड़ के वो अपने आप से क्या बात करे, अपने आप से क्या बोले, अपने आप को उस जगह रख के क्या देखे कि एक्चुअल में क्या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या सोसाइटी क्या बोलेगी मुझे। राइट राइट। देखिए भाई, इसका सीधा सा एक जवाब है, एंड दिस इज इन फैक्ट कमिंग फ्रॉम माय लास्ट मेमोरी ऑफ टेकिंग सेशन अंडर आर एक्टिंग एकेडमी ओनली, शाहजहाँपुर प्रोसीनियम्स एक्टिंग एकेडमी, जहाँ हमने लास्ट बैच को ट्रेन किया है। हम पहले दिन ही ये बताते हैं दैट द ओनस ऑफ प्रूविंग योर सेल्फ एज एन एक्टर, और द बर्डन ऑफ प्रूफ, द रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली इन सर्टन easy terms, is upon you as an actor. It's not upon the society. आपको खुद को साबित करना पड़ेगा कि आप अपनी आर्ट से,
आप अपनी कला से जीवन यापन कर सकते हैं. And when I talk about जीवन यापन, I talk about financial security, I talk about social security, I talk about economic security, I talk about even socio-political security also. So all the realms, all the dimensions of your life, if they are fulfilled by you being a passionate professional in your craft, then I think the society would become a support mechanism for you rather than it being some kind of a structure of antagonism. In the sense, what I'm trying to say is कि सोसाइटी एंटेगनिस्टिक कब होती है? वो तब होती है जब उसमें आपको कमियां मिलती हैं. द सोसाइटी वॉन्ट्स टू रूल ओवर योर शॉर्ट कमिंग्स, thereby making your shortcomings as its own strength. ये कमियां हमारी ना दिखाई दें, ये हमारे क्राफ्ट में फुलफिलमेंट हो, एक होलिस्टिक, इफ देयर इज अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, देयर इज अ होलिस्टिक फुलफिलमेंट. आई एम बीइंग अ वेरी great politically aware person. I have also gained my social and financial security. I've also gained social recognition and validity only through the medium of my craft. Then I don't think any social pressures would work upon you. That is what the case is. और ये इसलिए होता है that our social structure is such, the household structure, the kind of the society, the fabric of the society is such that security is more important than us, more important for us as compared to what you think about security is about. So for example, if I'm an artist and I think that my security lies in film industry, so this is my thought process about film industry. So this is what I feel. I mean, I feel that let's say 5 years down the line, 5 years from now, I would be a secured person by being an actor. This is my thought process of it. But the society does not think like that. It says what is, so you talk about society, what is there in your hands right now. And probably certain professions which relatively are more secured, which give you financial and social and political security, which is why parents do not want to let their children go into this so-called unpredictable, unexpected, to some it is polluted also, this kind of an industry. और वो कहते हैं कि बेटा established career बनाओ. तो मुझे लगता है कि दो चीज़ें हैं इसकी. एक तो हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि हमें प्रूव करने का मौका नहीं मिलता, और कुछ आर्टिस्ट भी ये सोचते हैं कि साहब हमारे पैशन को समझने के लिए सोसाइटी को स्टेप या इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है. आर्टिस्ट को इनिशिएटिव लेके सोसाइटी के सामने प्रूव करना चाहिए कि साहब मैं अपने आर्ट से अपनी ज़िंदगी बना रहा हूँ, अपने घर वालों की ज़िंदगी बना रहा हूँ, आप अपने बच्चों को भी मेरे जैसा आर्टिस्ट बनाइए. ये चीज़. और एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट हमने देखा है कि जो पेरेंट्स होते हैं ज़्यादातर बच्चों को किसी भी कोर्स के लिए पैसा दे देते हैं, बट जब बात आती है कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल करियर ऑप्शंस की, जैसे एक्टिंग है, उन्हें लगता है यार इसमें पैसा देना, या कोई एक्टिंग इंस्टीट्यूट में अगर हम पैसा दें और ये स्टैब्लिश होगा नहीं होगा हमें पता नहीं है, बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं रहती वहाँ पे. तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि मतलब What do you think? Then again, this is just a natural corollary. It's just something which is related to your previous question. It has come from your previous question only. Because parents do not find this as some kind of a settled career. They don't find settlement in this career. Therefore, they do not initiate any kind of support also, be it economic, financial. Which is why they would not want their children to go into some acting course or something. Would not want to invest into any acting course. उसके लिए कुछ हद तक हमारी इंडस्ट्री भी जिम्मेदार है, और कुछ हद तक हमारा माइंडसेट भी. बेसिकली इंडस्ट्री जिम्मेदार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंडस्ट्री ह्यूमन ड्रिवन इंडस्ट्री है. इट इज़ नॉट समथिंग दैट इट इज़ फंक्शनिंग ऑन सर्टन वेल एस्टैब्लिश्ड मैकेनिक्स कि भाई इतनी साल में इतनी फिल्में बनेंगी ही. हमारी अकाउंटेबिलिटी खुद से होती है एज क्रिएटर्स, नॉट टू दी अदर पीपल और अदर इंडस्ट्री पीपल और इवन इंडस्ट्री पर से. तो अगर मुझे लगता है कि मैं 6 महीने तक एक फिल्म नहीं बनाऊंगा तो मैं नहीं बनाऊंगा, कोई मुझसे नहीं पूछेगा. The moment I probably tomorrow my mindset changes and I think that let me make 2 films in one particular financial year, I might even do that also. ये अनप्रडिक्टेबिलिटी एक्टर्स को भी चैलेंजिंग एक्टर्स का काम भी चैलेंजिंग बना देती है, क्योंकि कभी कभी एंड देन अगेन इसके ऊपर क्या है, कास्टिंग प्रोसेस कभी कभी रिग्रेस हो जाता है. तो हो सकता है प्रोजेक्ट्स बहुत बन रहे हो, इंडस्ट्री में काम हो, आपको नहीं मिल पा रहा हो, इंडस्ट्री में काम ही नहीं हो रहा है इसलिए आपको काम नहीं मिल रहा है. सेकंड सिनेरियो. Third scenario, you are also not giving as an artist 100%, therefore you are not getting the required relevance or let's say opportunities from the industry side. इन तीनों चीज़ों को अगर आप मद्देनजर रखेंगे तो इसका सिर्फ एक प्रभाव है, एक्टर को काम नहीं मिल रहा है, एक्टर की लाइफ में सेटलमेंट नहीं है.
एक्टर की लाइफ विशेष हो रही है, और क्योंकि पेरेंट्स हमसे ज़्यादा समझदार होते हैं, we cannot hide ourselves from our parents. They understand it. They have seen much more larger part of the world than us, which is why they say that we don't want to support you. This is the normal psychology, the normal psyche I'm talking about. However, there are parents who have support like mine, who have supported their kids, and by God's grace, आशीर्वाद से वो बच्चे आज फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रहे हैं. So it depends from person to person. However, having said that, the larger part of the society still has a notion कि फिल्म इंडस्ट्री एक अनप्रडिक्टेबल वोकेशन है, प्रोफेशन है, और इसमें बहुत सोच समझ के जाना चाहिए. दैट्स ट्रू. सो डू यू थिंक दैट हर किसी में कहीं ना कहीं एक्टर छुपा होता है? बिल्कुल, डेफिनेटली एवरीबडी इज बोर्न एज एन एक्टर. देखिए, दिस इज समथिंग विच वी ऑलवेज टेल आवर एक्टिंग स्टूडेंट्स ऑल्सो. दिस इन फैक्ट मेक्स मी टू कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेलिंग दैट द फर्स्ट डे of any batch which we conduct, any workshop of acting which we conduct under the umbrella of our acting academy, which is Shahjahanpur Proscenium's Acting Academy, we always clarify this to our acting students that we are not here to tell you anything new. You can learn from us, that's there, but हम आपको actor बनाते नहीं हैं, because inherently you are an actor. Our job as acting mentors, as trainers, is just to make you realize that you are an actor. That self-realization is something where we ask you to actually go through. That is a process, that is a work. जब तक, as long as you're made of 5 elements, as long as you have 5 senses, as long as you're breathing, you are an actor. Probably you never got any professional opportunity of utilizing these traits of yours, which is why you say that, oh, I am like a little different from professional actor or something, but you never know. Life is just filled with colors and miracles. Tomorrow you might get an opportunity of performing in front of the camera. You might even do a much better job than the established actors also. You never know, because you already are an actor. तो मनील जी, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि व्हाट एग्जैक्टली, अगर ले मैन लैंग्वेज में समझाया जाए कि कास्टिंग क्या है, व्हाट इज़ ऑल अबाउट द कास्टिंग थिंग, बिकॉज यू हैव बीन इन टू दिस इंडस्ट्री फ्रॉम सो लॉन्ग. तो कास्टिंग किस तरीके से होती है, और शाहजहानपुर प्रोडक्शन में किस तरीके से कास्टिंग का पूरा प्रोसीजर रहता है और हर चीज़? देखिए, कास्टिंग, कोई भी एक कास्टिंग डायरेक्टर किसी भी इंडस्ट्री में, फॉर एग्जाम्पल इफ टॉक अबाउट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, more or less we all casting people, casting directors, casting agents, almost principally work on the same, we have the same work, we work on the same levels. Casting is basically, like, if you ask me in nutshell what exactly casting is about, casting is basically a responsibility to fulfill the script's need according to the characterization, character sketch which has been set by the writer, thereby giving suitable, relevant and appropriate actors for that particular project. इसमें ये नहीं ज़रूरी है कि कौन अच्छा दिखता है, कौन बुरा दिखता है. The only thing, the only element or the reason for which an actor is cast, an actor is not cast, is only, this is only because of suitability and appropriateness. That's all. तो स्क्रिप्ट हम सबकी माँ होती है, वो प्रोजेक्ट इनिशिएट करती है. The backbone, or the, I would say, the entire skeletal of any project is script only. Script says that I want an actor. We as casting people go, fetch out, find out, discover, invent actors according to the requirement of actors. And of course, there are different rungs to it. There are different levels to it. Like there's a level, one basic filtration is done by a casting agency of actors in terms of looks, the auditions they gave, and the introductions they basically have given to us. And then after that, you send it to the director, the producer. You sit with the director, the producer sits with you. So all three of us, like the casting people, the director and producer, sit and probably decide about it. तो कास्टिंग का प्रोसेस बिल्कुल सादा है, और किसी भी एक मानक और एक स्टैंडर्ड कास्टिंग एजेंसी की तरह हम कभी आर्टिस्ट से कोई पैसा, सोशल, मॉरल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, कभी कोई फेवर नहीं लेते, कोई पैसा नहीं लेते, किसी भी तरीके का कोई फेवर नहीं मांगते. आपको लगता है आप एक्टर हैं, आप हमें अप्रोच करिए. प्रोफाइल बनाने का एक स्टैंडर्ड तरीका है, वो हमारे इंस्टाग्राम के पहले पिंड पोस्ट में है, उसमें आप देख सकते हैं. यू सेंड योर प्रोफाइल इन दैट मैनर. If there's any suitable requirement for you, we'll approach you. Or if you find that, because our requirements go on to our WhatsApp stories and onto our Instagram handle, if you feel that you're suitable for a particular requirement, which has basically come from us, which has emanated from us, you approach us. If we think that you're suitable for that, we take it forward from there. It's a very, very simple process.
It's a very, in fact, it's a very, very, I'd say a very creative process also. When you see auditions of 5 new actors, you grow as an actor yourself. और दूसरा कास्टिंग का प्रोसेस जो है, ये ऑलमोस्ट कास्टिंग का प्रोसेस आप यहाँ देख लें, बम्बई में देख लें, साउथ में देख लें, ऑलमोस्ट यही होता है. देयर इज नो डिफरेंस. हाँ, चॉइसेस का, प्रायोरिटीज़ का, द वे दे कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन का, टाइम लाइन का फ़र्क हो सकता है, बट प्रिंसिपली, एथिकली एंड ऑन आईड से फंडामेंटली द प्रोसेस ऑफ कास्टिंग इज ऑलमोस्ट द सेम एवरीवेयर. नो, यू सेड वेरी राइट, क्योंकि एक्चुअली मेरे को लगता है कि स्कैम्स बहुत होते हैं. जी. जब भी एक्टर कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ देख रहा होता है, तो उसको लगता है कि यार ये प्रोडक्शन हाउस सही है नहीं है, या व्हाट्सएप पे स्टेटस देखा या कहीं भी गया, वो गया, उससे पैसे मांग लिए जाते हैं, यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर करा दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं ये स्कैम होता है, और वो डरा रहता है कि यार ही शुड गो और ही शुड नॉट गो. सो देयर शुड बी वेरी क्लीन थिंग कि देखिए, it's a like I told you that it's a very human driven industry. So gatekeeping it to a certain level probably is not possible. At least I think like that. लेकिन this is where you as an actor needs to grow as a prudent person also, not merely being an actor. You should not become a slave of your art. You should be there in association with your art. तो अगर आप आर्टिस्ट के तौर पे अपनी आर्ट को फुलफिल करने के लिए ये कहेंगे कि भाई कुछ भी काम मिलेगा मैं कर लूँगा, तो शायद आप एक्सप्लॉइट हो जाएंगे. और दूसरी ये चीज़ है कि एक्टिंग पर से द बेसिक डिफरेंस और द बेसिक थिन लाइन डिफरेंस जो एक आर्टिस्ट है जो स्कैम्ड हो गया है और जो स्कैम्ड नहीं हुआ है, वो ये कि आपको इस इंडस्ट्री में काम करने के पैसे मिलते हैं. यू गिव योर क्रिएटिव लेबर, सो आपको आपके काम का मेहनताना मिलेगा. इसके लिए किसी को भी 10 नए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है. और अगर कोई आपसे मांग रहा है तो गलत कर रहा है. प्लीज़ गो बैक एंड फाइंड आउट द रीजनिंग फॉर विच ही इज आस्किंग. नो बडी कैन गिव यू वर्क ऑन द बेसिस ऑफ मनी. नो बडी कैन गिव यू वर्क अदरवाइज ऑल्सो. यू ओनली क्रैक योर ओन ऑडिशंस. वी आर जस्ट द रिसोर्स. हम कास्टिंग डायरेक्टर्स के तौर पर हम सिर्फ जरिया हैं. हम आपके बारे में बात कर सकते हैं, आपके प्रोफाइल के बारे में बखान कर सकते हैं, उसको डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के सामने एक्सप्लेन कर सकते हैं. बट जो आपने ऑडिशन बनाया है, जिस तरीके का आपका काम है, वो आप ही का है. तो अगर कोई आपसे इस चीज़ की एवज में पैसे मांग रहा है या कोई आपसे फेवर मांग रहा है, तो गलत कर रहा है, वो स्कैम है. क्योंकि मैंने आपको बताया द थिन लाइन डिफरेंस. द फर्स्ट पैरामीटर टू नो दैट दिस इज एन इंडस्ट्री वे यू गेट वर्क फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ ए क्रिएटिव लेबर, एंड इट्स नॉट द अदर वे अराउंड कि मुझे काम चाहिए इसलिए मुझे पैसे दो. मतलब मैंने तो आज तक नहीं देखा अपने दोस्तों के साथ, जो मेरे कोलीग्स हैं, आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं, इवन कास्टिंग पीपल ऑल्सो, दैट दे कुड गिव एनी बडी वर्क और एनी आर्टिस्ट इन माई ओन wildest stretch of imagination has gotten plausible or relevant work by paying money. और क्योंकि आप जानते हैं कि स्कैम्स होते हैं, तो इसके छोटे छोटे तरीके हैं. सोशल मीडिया का ज़माना है, उनकी बैकग्राउंड चेक करिए, उनका बैकड्रॉप चेक करिए, कितना काम किया है, क्या किया है, किस तरीके के उनके सोशल मीडिया पे पोस्ट जाते हैं. अगर वो काम से रिलेटेड हैं, कुछ सक्सेसफुल उन्होंने कुछ काम किया है, तो आप अपना कॉल ले सकते हैं उसके बारे में. कुछ लोगों ने अगर उनके साथ काम किया है, तो उनसे आप उनकी राय ले सकते हैं. और सबसे बड़ी बात है जो मैं अपनी पर्सनली ज़िंदगी में अप्लाई करता हूँ, क्योंकि मैं कास्टिंग करता हूँ, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैं मनोविज्ञान पे, साइकोलॉजी पे आई हैव अ लॉट ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी. बात करके भी जानना सीखिए किसी को कि कोई इंसान कहाँ किस हद तक है, कितने पानी में है, कितना गहरा है, कितना उथला है. ये आपका अपना प्रोसेस है. इसको डेवलप करिए, इसको अवेकन करिए, और इसको हथियार बना के, मुझे लगता है कि अगर ये आपके लिए दिस ट्रेड ऑफ योर्स, इफ इट्स प्रॉपरली हैज़ राइजन अबव एंड इफ इट्स अवेकेंड, you would not be scammed ever. Not in fact we're talking about the film industry, anywhere in your life. अगर हम साइकोलॉजी, जैसे आपने बात करी, साइकोलॉजी के बारे में अगर बात करें, तो कभी कभार ऐसा होता है कि कोई एक्टर बनना तो चाहता है, बट वो अपने शरीर को, अपने फेस को मिरर में देख के लगता है उसे, यार मैं तो ऐसा नहीं बन सकता, या वो अपने रंग को देख के बोलेगा या किसी चीज़ को बोलेगा, और उसका कॉन्फिडेंस वहीं गिरना स्टार्ट हो जाएगा. क्या ज़रूरी होता है कि आपको हमेशा ही सिक्स पैक एब्स के साथ या बहुत ही हैंडसम दिख रहे हो आप, तभी आपको काम मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं है. लाइक आई टोल्ड यू, कास्टिंग जो होती है वो सूटेबिलिटी ऑफ कैरेक्टर के लिए होती है, नॉट मियरली जस्ट बिकॉज यू लुक इन अ सर्टन वे.
I don't want to get into that entire moral debate of who's beautiful, who's not. As far as the industry is concerned and the casting work is concerned, giving work to actors, वो सिर्फ इस आधार पे होती है कि मेरे कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट क्या है. हाँ, विजुअल मीडियम है, आपको अपीलिंग दिखना ही पड़ेगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप खूबसूरत हों. बाय सोशल स्टैंडर्ड्स, जो सोसाइटी ने स्टैंडर्ड सेट करे हैं, आप उनके आधार पे खूबसूरत हैं तभी आप अपीलिंग लग सकते हैं. आप साधारण शक्ल सूरत के भी हो सकते हैं तभी अपीलिंग लग सकते हैं. एंड दैट ओनली one can have this understanding of you only when you appear in front of the camera, be it by auditions, be it by working on different projects, be it simply sending your work or let's say different auditions or monologues or your released work. तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक सर्टन वे में दिखना है. और अगर ऐसा होता तो जो ट्रेट्स या जिस लुक की आपने बात की, सिर्फ वही लोग हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे होते और कोई नहीं कर रहा होता. आज मैं आपके सामने नहीं बैठा हूँ क्योंकि ना मेरे 6 पैक्स हैं और ना मैं खूबसूरत हूँ. नहीं, आप खूबसूरत तो हैं, Thank you very ऐसा much. नहीं है. बट इसी के साथ साथ मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जैसे हर कोई, आप अपने जैसे प्रोडक्शन हाउस के बारे में बताया, तो क्या सिर्फ एस्पायरिंग एक्टर्स ही आ सकते हैं या फिर कोई ऐसा इंडिविजुअल भी जो मान लीजिए 9 to 5 जॉब कर रहा है लेकिन उसे एक्टिंग का शौक तो है, वो एक्टिंग का शौक अगर पूरा करना चाहे और अपने आप को थोड़ा समझना चाहे, क्या वो भी आपके प्रोडक्शन हाउस में आके एक्टिंग सीख सकता है, समझ सकता है कि एक्चुअली ये क्राफ्ट क्या है? देखिए, हमारा जो है प्रोडक्शन हाउस शाहजहांपुर प्रोसीनियम्स LLP में थोड़ा सा एक पृष्ठभूमि बता दूं. सो बेसिकली इट हैज़ 2 वर्टिकल्स. शाहजहांपुर प्रोसीनियम्स कास्टिंग स्पेस विच लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ functioning actors who are working as professional actors, and we generate employment for them. We try to scout work for them from Hindi film industry, from South, from Mumbai, from Delhi, and from wherever it's possible. So giving them genuine work, and not only giving them genuine work, but also assuring that they basically are safe, protected, एंड उनके फाइनेंसेस ठीक रहें. उनका बजट हम डिसाइड करते हैं प्रोडक्शन हाउसेस के साथ बैठ के. अपने एक्टर्स का जो भी फाइनेंशियल और सोशल सिक्योरिटी होती है वो हम डिसाइड करते हैं. सो इवन सो दिस इज समथिंग विच माई शाहजहांपुर प्रोसीनियम्स कास्टिंग स्पेस डज, giving and generating employment and also making sure that they're secured, protected financially, creatively and socially also, on set and off set also, फिल्म सेट पे या फिल्म सेट के बाहर भी. दिस इज वन पार्ट. दूसरा है हमारा शाहजहांपुर प्रोसीनियम्स एक्टिंग एकेडमी, वे वी ट्राई टू गिव, वी ट्रेन अस्पायरिंग एक्टर्स. एंड द बेस्ट पार्ट, probably this is best for me, the most beautiful part or the USP is they are not mutually inclusive. तो हम कभी अपने एक ऐसे एक्टर से ये नहीं कहते कि तुम हमसे सीखो, हमें फीस दो तभी हम तुमको काम देंगे. तो आपका सवाल कि साहब क्या कोई कॉर्पोरेट, if there's somebody who's into corporate and everything and he has this feeling that he needs to learn acting, he still is most welcome. हम उसे काम देंगे अगर उसके अंदर वो क्रेडिबिलिटी है, उसने वो अथॉरिटी अपनी डेवलप करी है अपने क्राफ्ट के माध्यम से. इफ़ ही हैज़ द रिक्वायर्ड लुक एंड प्रेजेंस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट विच वी हैव फ्रॉम अ सर्टन प्रोजेक्ट इन द स्क्रिप्ट, देन ऑफ कोर्स ही वुड बी कास्ट. इसके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपने हमारी क्लासेस की हों या आप एक सर्टन बैकग्राउंड से आते हो, किसी से नहीं. आप बगैर कुछ सीखे भी आएंगे तो भी आप उतने ही स्वीकार हैं जितने आप सीख के आते हैं. तो कोई भी आ सकता है, बिकॉज शाहजहांपुर प्रोसीनियम्स LLP इज नॉट merely a production house, it's a liberal platform for all creators to grow and generate work for themselves. तो जब हम ये बात कर देते हैं तो हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की, और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सब लोग उसके लिए जो है उसमें वेलकम है, उसमें जायज़ हैं, और वो सबका है और सब उसके हैं. ऐसा है सब. दैट्स रियली ग्रेट. सो अगर हम बात करें कि बॉलीवुड एक बहुत बहुत बड़ा चैप्टर है ऑब्वियसली, तो आपने बहुत सारा काम भी करा है बॉलीवुड में, बहुत सारी चीज़ें करी हैं. हु इज़ द वन पर्सन यू थिंक दैट ही हैज़ ऑलवेज इंस्पायर्ड यू? व्हेनेवर यू थिंक ऑफ बॉलीवुड यू थिंक ऑफ दैट पर्सन. सो आई टेक माई इंस्पिरेशन. सो देखिए, मैं सबसे बड़ा खुद का फ़ैन हूँ. मैं सबसे पहले बता दूं, मैं किसी और का फ़ैन नहीं हूँ. ये आपको जब भी मेट में करीना मैम ने बोला था. लेकिन बट जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू, I do not take inspirations from anywhere or everywhere or too frequently. Okay. I don't. I mean, I am wired in such a manner कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेरणा ले नहीं पाता किसी से. फिर मैं खुद में ही खो जाता हूँ कि अच्छा ये तो मुझ में ऑलरेडी है, फिर प्रेरणा लेने की क्या ज़रूरत है. तो अगर हमारे जैसे लोगों के ऊपर कोई इम्पैक्ट डाल रहा है तो not because of the fact, not only because of the fact he is a successful actor, he needs to be a different person than me to impact me. And if you really ask me who's that person, without any doubt,
without any second thoughts, with folded hands, I would take Shah Sar's name, Mr. Shah Rukh Khan. Despite the fact he's a celebrity, which is again a matter of fact I'm stating, and everybody knows about it, that part has affected me as an actor in process. Definitely, we look up to him. But him being a very different, a very affectionate, lovable person who's having loads of goodness in him. He's an epitome of being a correct human being. वो उसका उरूज है, तो उस वजह से वो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं और हमेशा करते रहेंगे. That's really great. So, all right. So, thank you, मिश्रा जी, for being here. And I hope कि आपके प्रोडक्शन हाउस में जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं वो रियली उनको काम मिलता रहे. एंड ऑब्वियसली जो भी मेरे को लगता है कि जो भी मेरी ऑडियंस है जिनको लगता है यार वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक एक्टर छुपा है और वो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, एक बार ज़रूर इस प्रोडक्शन हाउस में और सर के एकेडमी में ज़रूर जाएं, क्योंकि एक्चुअली आप एक एक्टर बने ना बने एक अच्छे इंसान ज़रूर बनेंगे. क्योंकि मिश्रा जी हमेशा कहते हैं कि अगर एक्टिंग करोगे तो अच्छे इंसान ज़रूर बन जाओगे. बिल्कुल सही है. यू गॉट इट राइट. थैंक यू. थैंक यू.